Hello everyone. Hello learners. Welcome back to my YouTube channel Vidhik Manthan, where we have started a journey, a prolonged journey, where we have decided to complete the all three criminal laws parallelly. In this particular video, I have come up with the next lecture on Bharatiya Nyaya Sanhita. This is going to be our part 4 of BNS. This is going to be our part 4 of Bharatiya Nyaya Sanhita. In the previous lectures, we studied the basic concepts, the basic principles, and the basic understanding we tried to build before delving deeper into the statute. We talked about some of the prominent and very important concepts as far as mains is concerned. We talked about the doctrine of transfer of malice, where we studied how we have to decide the culpable cause when we happen to get two causes culminating into a single offense. Then the major cause and the minor cause. Making the base major cause and minor cause, we decide which cause is culpable. Then after we started the statute, we started with preamble, and as far as I remember, we have completed the long title. We had started chapter 1 preliminary. We started section 1. Now let us go further without wasting any more time. Section 1 subsection 2, we have completed this. It talks about the commencement, it talks about the enforcement date of BNS, which is 1st July 2024. Let us go with subsection 3. The subsection 3 talks about the jurisdiction. We started with jurisdiction. As far as I remember, we had started and discussed also the intra-territorial jurisdiction. Section 1 clause section 1 subsection 3 talks about the intra-territorial jurisdiction. The jurisdiction of BNS can be divided into two parts: intra-territorial and extra-territorial. Intra-territorial means that the applicability of BNS within India, and extraterritorial jurisdiction means the applicability of BNS outside India, outside the borders of Indian territory. So section 1 subsection 3 deals with intra-territorial jurisdiction. Let us read once again. It says every person includes, we discussed, citizen of India and foreigner also. Every person shall be liable to punishment under this Sanhita and not otherwise. Not otherwise means not by any other law, but the person will be punished by this Sanhita only, by this IPC, by this BNS only. कोई और BNS या कोई और other law is not going to punish, but this BNS will punish the person for every act and for every omission. For every act and for every omission contrary to the provisions thereof. Thereof means of BNS, of which he shall be guilty within India. हर एक पर्सन, either he be citizen of India or any foreigner, अगर वह पर्सन इंडियन टेरिटरी के अंदर रह करके कोई भी एक ऐसा ऑफेंस करता है जो BNS कवर करता है उस ऑफेंस को और पनिश करता है, तो वह पर्सन will be liable to be punishment. He will be liable to punishment. It says shall be liable. It means that it is very much clear that the end product of criminal justice system is punishment. क्योंकि ये कोई भी जुडिशियल डिस्क्रिशन नहीं दे रहा है, जजेस के हाथ को फ्री नहीं कर रहा है कि आपका डिस्क्रिशन नहीं, उनको मतलब डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दे रहा है कि यू कैन फ्री एनी ऑफेंडर, यू कैन नॉट फ्री एनी ऑफेंडर, क्योंकि यहाँ पे शैल लिखा है, यू हैव टू गिव पनिशमेंट एंड ऑफेंडर हैज टू अंडरगो द पनिशमेंट. So this much we had discussed. Let us go to section 1 subsection 4. Basically this subsection talks about the aspect of extraterritorial jurisdiction. Let us read. Before reading, let me tell you that this particular subsection is a principal laying section. ये कैसा कोई significant subsection नहीं है, ये एक principal laying section है.
जो कि सिर्फ ये एक सिद्धांत बताता है, एक ये प्रिंसिपल ले डाउन करता है कि ऐसा पर्सन जो इंडिया का है, इंडियन सिटीजन है, और वह बाहर जाता है और कोई ऑफेंस करता है जो कि बीएनएस में पनिशेबल है, तो दैट पर्सन विल बी लाइबल टू punishment. Let us read. Any person liable by any law for the time being enforced in India to be tried for an offense committed beyond India. मतलब एक ऐसा ऑफेंस जो कि लाइबल है इस संहिता से, लेकिन वह ऑफेंस कमिट कर रहा है नॉट इन इंडिया, बियॉन्ड इंडिया, शैल बी डेल्ट विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता. उसको डील किया जाएगा, उसको ट्राई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता. For any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. वो पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है, वो बाहर जाकर के कोई एक ऐसा ऑफेंस कर रहा है, मान लीजिए मर्डर कर रहा है, युगांडा में जाकर के मर्डर कर रहा है. अब दैट मर्डर इज पनिशेबल इन इंडिया, तो अब उसको हम ऐसा डीम कर लेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है, इन द सेम मैनर एज इफ में डीम किया जा रहा है, तो उसको हम डीम कर ले रहे हैं एज एन इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, और उसको हम वैसा ही पनिश कर रहे हैं जैसा अगर वो युगांडा में ना होकर के वो इंडिया में होता और किसी का मर्डर करता. तो जैसा हम तब पनिश करते उसको प्रोसिक्यूट और पनिश करते, वैसा हम अभी भी उसको प्रोसिक्यूट और पनिश करेंगे. सो दिस इज अ प्रिंसिपल लिंक सेक्शन विच टेल्स मेयरली दैट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज आउटसाइड इंडिया and commit some offense which is punishable in India as per BNS, that person will be prosecuted and punished as per the Indian criminal justice system. अब इस प्रिंसिपल लेइंग सेक्शन को इफेक्ट जो दे रहा है वो सबसेक्शन 5 है. सबसेक्शन 5 इज द सबसेक्शन विच गिव्स इफेक्ट टू सबसेक्शन 4. तो इसको इफेक्ट देने वाला सबसेक्शन 5 है. लेट अस रीड. इट सेज दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, इस संहिता का जो प्रोविजन है अप्लाई करेगा टू एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस पे अप्लाई करेगा जो कि कमिट हो रहा है किसके द्वारा, बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. इस संहिता का हर एक प्रोविजन ऐसे ऑफेंस पे अप्लाई करेगा जो ऑफेंस एक ऐसे पर्सन के द्वारा किया जा रहा है हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज नॉट कमिटिंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इन इंडिया बट ही इज कमिटिंग दैट ऑफेंस without and beyond India. Now, what does this phrase mean, without and beyond India? Without, beyond India means territorial, टेरिटरी के बाहर, फिजिकल टेरिटरी, फिजिकल लैंड के बाहर, बॉर्डर क्रॉस करके मान लीजिए कि हमारे पड़ोसी देश में जाकर के वो कोई मर्डर कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बियॉन्ड इंडिया गया. विदाउट इंडिया का मतलब क्या हुआ, वो इंडिया के टेरिटरी पे नहीं है, इंडिया के फिजिकल लैंड पे नहीं है, लैंडस्केप पे नहीं है, बट वो स्पेस में है. वी स्टडी द मीनिंग ऑफ इंडिया इन आवर BNSS क्लास. इंडिया, इंडियन टेरिटरी क्या क्या होती है, क्या इंक्लूड करती है इंडियन टेरिटरी में, वी हैव स्टडीड इन एन इलेबरेट मैनर इन आवर BNSS क्लास. तो इंडिया की जो अबव स्पेस है, उस स्पेस में अगर भी नहीं कर रहा है, उस स्पेस के बाहर कर रहा है, मतलब इंडिया, इंडिया के ऊपर जो भी एयर कॉलम है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया. तो ना वहाँ कर रहा है ना इंडिया के फिजिकल लैंड पे कर रहा है, तो इसको बोलेंगे विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. वो बाहर जा करके कमिट कर रहा है. तो जब एक प्रिंसिपल याद रखिएगा कि एनी पर्सन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज आउटसाइड इंडिया ऑलवेज कैरीज अ बैग ऑफ भारतीय न्याय संहिता एट हिज बैक. अपने पीठ पे वह एक बैग लेके चलता है, एक बैगेज लेके चलता है IPC का या BNS का. वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो इंडिया में हूँ नहीं, अब मैं ये मर्डर कर सकता हूँ. ही कैन नॉट से. व्हेन अ पर्सन क्रॉसेज इंडियन बाउंड्री और इंडियन बॉर्डर and goes in some foreign country, he always carries the bag of भारतीय न्याय संहिता. वो BNS को कैरी करके लेके जाता है. कैरी इन द सेंस उस पर हर एक प्रोविजन BNS का अप्लाई हो रहा होता है, वो बच नहीं सकता. सो दिस इज कॉल्ड कि ही ऑलवेज कैरीज अ बैग ऑफ BNS. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर clause. Subsection 5 clause B says that any offense committed by any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be. अब जो रजिस्टर्ड शिप होते हैं, मान लीजिए कि एक ऐसा शिप है जो इंडियन रजिस्टर्ड है, अगर वो इंडिया में रजिस्टर हुआ है शिप, एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, एज फार एज दैट पर्टिकुलर शिप इज कंसर्न्ड, वो शिप फ्लोट हो रहा है, इंडियन ओशन में जा रहा है, पैसिफिक ओशन में जा रहा है, एटलांटिक ओशन में जा रहा है, अगर वो पर्टिकुलर शिप इज इंडियन रजिस्टर्ड,
इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो उसको हम मानेंगे कि वो इंडिया की फ्लोटिंग टेरिटरी है, मतलब कि इंडिया का ये एक ऐसा पार्ट है, टेरिटरी है जो फ्लोट हो रही है। उस पर अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो ये माना जाएगा कि वो इंडिया में ही कमिट किया गया है, और उस ऑफेंडर के अगेंस्ट बीएनएस अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की फ्लोटिंग टेरिटरी है, एंड बीएनएस विल कवर द ऑफेंडर. We will be talking more elaborately. Just let us cover the clause C. Clause C says that any offense committed by any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India. Okay, so let us go more deeper, and let us take various illustrations in order to understand the jurisdiction. As far as extraterritorial jurisdiction is concerned, let us take many propositions and various kind of illustrations in order to fathom, in order to understand it wholly. See, suppose करते हैं, आई एम गिविंग यू एन इलस्ट्रेशन, यू ट्राई टू सॉल्व इट. मान लेते हैं कि देर इज एन इंडियन लेडी, सी हैपन्स टू गो इन अमेरिका, सी इज इन यूएसए, and an American guy duped her. I think I already have taken this example. This is the classic example to understand this particular aspect. What I want to convey you. That particular Indian lady has been duped by an American guy. They both of them fall in love. After a couple of months of relationship, they enter into marriage. They both marry each other. After marriage, इंडियन लेडी को ये पता चलता है कि इस अमेरिकन पर्सन की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी. अब जब शादी ऑलरेडी हो चुकी थी तो इसके मतलब कि विक्टिम कौन हुआ? हमारी इंडियन लेडी हुई. तो विक्टिम इज इंडियन लेडी, एंड द ऑफेंडर इज दैट अमेरिकन बॉय, वी कैन से. अब जो विक्टिम के अगेंस्ट, जो इंडियन लेडी के अगेंस्ट बाइगेमी कमिट हुआ, दैट अमेरिकन गाय committed the offense of bigamy, which is very much punishable in India. Bigamy is an offense in India. अब विक्टिम का क्या होगा? विक्टिम को हम कैसे रिट्रेसल देंगे? क्या उसको, उसके लिए क्या कर सकता है भारत, इंडिया क्या कर सकता है? विक्टिम, क्योंकि हमारी देश की बेटी थी, उसके साथ एक ऐसा ऑफेंस हो जा रहा है, उसके साथ हो रहा है, मतलब वो नहीं करिए, उसके साथ हो रहा है. एक ऐसा ऑफेंडर जो अमेरिकन है, वो बाइगेमी कमिट कर रहा है इंडियन लेडी के साथ. तो लेट मी टेल यू द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. As far as criminal jurisdiction is concerned, we always look after the nationality of the offender but not the nationality of the victim. It means that अगर हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का लॉ इस केस पे अप्लाई करेगा, तो वी विल ऑलवेज सी द नेशनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर. Here the nationality of the offender is America, the USA, not India. It is the USA. It means that the criminal jurisdiction of USA will be applicable on this particular matter. इंडिया चाह करके भी उस इंडियन लेडी के लिए कुछ नहीं कर सकता. वाई? क्योंकि सी इज अ विक्टिम, एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का जो एक प्रिंसिपल है, जो इंटरनेशनल लॉ है, वो ये कहता है, एज पर द इंटरनेशनल लॉ, इट इज ऑलवेज द ऑफेंडर्स नेशनैलिटी विच मैटर्स एंड विच डिसाइड्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन. इन दिस पर्टिकुलर केस विक्टिम को जो कुछ भी उसको रिलीफ मिलेगा वो अमेरिकन जुडिशरी ही दे सकती है. इंडियन जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता इसमें. और फॉर एन एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर केस. तो आई वुड लाइक टू टेल यू अ केस, इट इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट. मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 सुप्रीम कोर्ट. इसमें ये बोला गया था कि विक्टिम्स नेशनैलिटी इज इमैटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू जुरिस्डिक्शन. victims nationality is immaterial. It is always the offenders nationality which matters. जब भी हमको ये डिसाइड करना हो कि इसमें क्या एप्लीकेबल, कौन सा क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा, विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिसाइड नहीं करेंगे, बट
ऑफेंडर जो है, जिसने ऑफेंस किया है, उसका नेशनैलिटी क्या है, वो किस नेशन का है, उस नेशन का लॉ अप्लाई होगा. दिस इज द वन इलस्ट्रेशन. नो, सपोज लेट अस टेक अनदर इलस्ट्रेशन. सपोज कि एक ऐसा ऑफेंस है जो इंडियन सिटीजन बाहर देश में अब्रॉड जाता है और फॉरेन कंट्री में एक ऑफेंस कमिट करता है, विच इज़ मर्डर. अब मर्डर इज पनिशेबल इन इंडिया ऑल्सो, मर्डर इज पनिशेबल इन, फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन ऑल्सो. वो यूके जाता है, ही कमिट्स मर्डर देयर, और मर्डर एक करने वाला जो इंसान है वो इंडियन सिटीजन है. अब वो मर्डर इज पनिशेबल इन इंडिया ऑल्सो एंड इन यूके ऑल्सो. तो अब उसको ट्राई कौन करेगा, उसको प्रोसिक्यूट और पनिश कौन करेगा? दिस इज द million dollar question, and we have to address such illustrations. I'll be taking more illustrations like this. In this particular case, as per the international law, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जिसके ज़मीन पे या जिसके ज़मीन पे ऑफेंस हुआ है, पहला उसका अधिकार होता है केस को ट्राई करने का और ऑफेंडर को पनिश करने का. तो वी हैव टू follow this particular principle of international law, which says that it is the UK soil, it is the soil of UK. यूके ब्रिटेन की मिट्टी है जिस पे ऑफेंस कमिट हुआ है, तो यूके का ही राइट होगा एज पर द इंटरनेशनल लॉ, जो पहले प्रोसिक्यूट और उसको पनिश करेगा. तो इन दिस पर्टिकुलर केस हमको ये भी समझना है कि अगर यूके पनिश कर दे रहा है, प्रोसिक्यूट करता है, पनिश करता है, तो जब वो इंडिया आएगा तो क्या उसको फिर से हम प्रोसिक्यूट और पनिश करेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल तो ये कहता है कि पहले वो करेगा तब आप करोगे. हम लोग नहीं कर पाएंगे. क्यों? यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अट्रैक्ट हो जाएगा एंड इट विल सेव द एक्यूज्ड, विच सेज डबल जियोपार्डी. डबल जियोपार्डी मीन्स any victim or any accused who has been once prosecuted and punished. prosecuted and punished is very important term. उसको prosecute और punish भी होना ज़रूरी है. अगर उसको प्रोसिक्यूट किया गया और पनिशमेंट मिल गई उसी सेम ऑफेंस की ब्रिटेन में, तो उसको इंडिया में ला करके अगेन प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं कर सकते. बाय डबल जेपर्डी will protect him. So this was the case when the offense is punishable in both the countries. Now let us take any such example, which is suppose एक ऐसा ऑफेंस करता है इंडियन सिटीजन जो बाहर ऑफेंस नहीं है बट इंडिया के हिसाब से वो ऑफेंस है. जैसे मैंने बोला कि इफ सिटीजन ऑफ इंडिया गोज आउट, ही ऑलवेज कैरीज अ बैगेज ऑफ BNS, he cannot escape from it. So when he goes outside India, he commits some offense, and that offense is punishable in India but not punishable in the country where he commits. So in this particular case, when he will come back to India, then he will be prosecuted and punished. Why? Because that particular offense is not offense in that country where he committed. That offense is committed in India only. So we will have to wait for his return. The moment he will return, and the place where he will be found, मार्क दिस पॉइंट, इंडिया के किसी भी कोने में जहाँ उसको पाया जाएगा फर्स्ट टाइम, वहाँ पे उसका ट्रायल चलेगा, उसको पनिश किया जाएगा. सो दिस वी कैन कोरिलेट दिस एस्पेक्ट वेयर वी कैन कोरिलेट इफ वी गो टू आर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, सेक्शन 208 सेज कि एक ऐसा पर्सन, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 है, दिस वी हैव टू read with सेक्शन 208 ऑफ BNSS, विच सेज कि जब एक ऐसा पर्सन जो बाहर ऑफेंस करके आया है और इंडिया में उसको पनिश करा जाना है, तो उसको पनिश, उसका प्रोसिक्यूट, उसका ट्रायल कहाँ चलेगा? उसका ट्रायल वहाँ चलेगा जहाँ वह पाया जाएगा, इंडिया में. सो दिस इज द सिनेरियो बिहाइंड इट. नाउ लेट अस टेक मोर इलस्ट्रेशंस. Supposedly, let us read again, then we can proliferate more illustrations. Reading the subsection 5 again. The offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India, this is clear. Any place, any person on any ship, yes. Clause B needs more discussion. Any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be. Suppose एक इंडियन रजिस्टर्ड शिप है एंड उस
शिप पे दो फॉरेनर्स हैं, उस पर्टिकुलर इंडियन रजिस्टर्ड शिप पे इंडियन कोई भी नहीं है, दोनों फॉरेनर हैं, एंड बोथ ऑफ देम हैपन टू इंडल्ज इनटू अ फाइट. They both fought. A skirmish took place. They both fought, and one foreigner kills the another foreigner. So what I thought that since it is the floating island of India, floating territory of India, so that of particular foreigner will be liable as per the BNS. This is the case. Let us take another example. मान लेते हैं कि एक ऐसा शिप विच इज़ नॉट इंडियन रजिस्टर्ड, वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुआ, इट इज़ some other country registered ship. On that particular ship, two foreigners are there. उन दोनों फॉरेनर के बीच में लड़ाई होती है, और तब तक वह इंडियन ओशियन या 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ जाते हैं. एंड द फॉरेनर हु इज इंजर्ड आफ्टर दैट फाइट, दैट इंजर्ड फॉरेनर गेट्स हॉस्पिटलाइज्ड, सपोज इन केरला. केरला इज अ कोस्टल स्टेट. केरला में उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है. आफ्टर हॉस्पिटलाइज्ड ही succumbs टू डेथ, उसकी डेथ हो जाती है. देन इस केस में क्या होगा? बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर केस, those were two foreigners. Those two foreigners were lying in any such ship which was not Indian registered. It means that that territory was not Indian territory. That territory was not Indian floating territory. लेकिन जो लड़ाई होने के बाद दैट पर्टिकुलर फॉरेनर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन केरला, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट. तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने इंडियन टेरिटरी में आकर के ऑफेंस कमिट किया. दिस विल नॉट बी डीम्ड, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड. लड़ाई कहीं और हुई, उसका यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, यहाँ पे एडमिट के दौरान उसकी डेथ हुई. तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे बीएनएस उस पर अप्लाई करेगा. क्यों? क्योंकि लड़ाई वो इनिशिएट वहाँ हुआ था. यहाँ पे बस बेसिकली कह सकते हैं कि उसका जो मेन दैट जो इनिशिएशन था, जो इंसेप्शन था, दैट वाज नॉट इन इंडियन टेरिटरी. सपोज वो अटलांटिक ओशियन में लड़ाई करना स्टार्ट किए या इंडियन ओशियन में, outside of the 12 nautical miles. But when they reached in 12 nautical miles, then the injured foreigner gets hospitalized. उस हॉस्पिटलाइज के समय, ट्रीटमेंट के समय उसकी डेथ हो जाती है. तो जो एक्यूज्ड है उस पर बीएनएस अप्लाई नहीं करेगा. लेकिन जब इसी केस में वो इंडिया में आ जाता है, यहाँ पे लड़ाई होती है, तब बीएनएस उस पर अप्लाई करता ऑन दी एक्यूज्ड फॉरेनर. सो ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट आई एक्सप्लेन्ड, इस पर एक केस है, द वेरी लैंडमार्क केस. उसी केस में दिस प्रिंसिपल वॉज लेड डाउन. द नेम ऑफ द जजमेंट इज व्हीलर. इट इज व्हीलर versus emperor. In this particular case, it was said that a foreigner who initiates outside any country, for example, मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बता दे रहा हूँ. a foreigner who initiates outside India, initiates means any such offense or any such fights as per our illustration. A foreigner who initiates outside India which culminates Indian soil, it would be immaterial where it initiated from. No, the another example, a foreigner kill another foreigner in foreign ship. Foreign ship means that ship was registered in some other country. That foreign ship which was lying within 12 nautical miles. सपोज बॉम्बे कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर वो फॉरेन शिप था, और उस फॉरेन शिप पे दो फॉरेनर से उस शिप पे कोई ऑफेंस हो रहा है, तो बीएनएस यहाँ पे अप्लाई होगा. क्यों? क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी में हुआ है. So BNS will apply. No. Suppose two non-Indians fought on ship in Indian Ocean. जो इंडियन ओशियन है, दो नॉन इंडियन ओशियन के जो शिप है that is in Indian Ocean. In that ship, those two non-Indians indulge into fight. One foreigner injured
and he was brought in Kerala and gets hospitalized. The example what I explained you, it is the same example. So that जो उसकी डेथ हुई, इट विल नॉट बी डीम्ड कि उसकी डेथ या उसके अगेंस्ट जो ऑफेंस हुआ वो इंडिया में हुआ है उसको बस यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था, और यहाँ पे उसको उसकी डेथ यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हुई है। वो मारा कहीं और था, इंजर्ड कहीं और किसने किया, लेकिन यहाँ पे बस जो उसकी बॉडी पे इंजरी पहुँचाई गई, वो इंजरी इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं पहुँचाई गई, वो इंडियन ओशियन में पहुँचाई गई। वो पास में आते आते केरला कोस्ट में आकर के उसको हॉस्पिटलाइज करवाया। सो हियर BNS विल नॉट अप्लाई। Now, let us see a few more propositions, which is very much important from main's perspective. मान लेते हैं a question arises, a foreigner who has acquired Indian citizenship, एक फॉरेनर है जो कि इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया। उस सिटीजनशिप की एक्वायर के पहले जो वो ऑफेंस कर चुका है अपनी कंट्री में, now another question arises which is very much important from main's point of view. A question arises that a foreigner who has acquired Indian citizenship, so that foreigner would be liable for his past offense which he has committed in his own country before acquiring the Indian citizenship. The answer is no. This was said in the case of Central Bank of India Limited versus Ram Narayan 1955 Supreme Court. इसमें बोला गया था कि no foreigner can be tried retrospectively for the offense he committed before he became Indian citizenship. तो फॉरेनर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने से पहले जो उसने ऑफेंस किया अपने खुद की कंट्री में कहीं भी और, ही कैन नॉट बी ट्राइड एंड प्रोसिक्यूट पनिश्ड फॉर देम फॉर दोज ऑफेंसेस। नो, सपोज इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन बनता है कि एक फॉरेनर है जो कि कमिट किया ऑफेंस बाहर, लेकिन वो इंडिया में आ जा रहा है। अब इंडिया में आ गया तो कमिट तो, प्लस एक तो वो फॉरेनर है, तो जब उसने ऑफेंस कमिट किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज नॉट कैरिंग द बैगेज सिंस ही वाज फॉरेनर, तो BNS डिड नॉट अप्लाई to him at the point of time when he was committing that particular offense. So after committing that offense when he happens to enter in India, तो अब क्या उसमें BNS अप्लाई करेगा? ऑब्वियसली नहीं अब करेगा। तो क्या किया जा सकता है? हेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अगर उस पर्टिकुलर कंट्री और इंडिया के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि एक कंट्री है अमेरिका, USA और इंडिया के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है फॉर एन एग्जाम्पल। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब ये हुआ कि अगर उनका एक सिटीजन जो मेरे लिए फॉरेनर है वो वहाँ पे ऑफेंस कमिट करके इंडिया में भाग आता है, तो उस ट्रीटी के मुताबिक हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं उस पर्सन को पकड़ के अरेस्ट करके उनको वापस कर दूँ। क्यों? उनको प्रोसिक्यूट करे और पनिश करे उस एक्यूज को। सो दिस इज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। In this way, if a foreigner commits some offense in foreign country and comes to India, escape करके आता है, भाग के आता है, तो अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हम दोनों कंट्री के बीच में है, तो वी आउट टू अरेस्ट दैट पर्सन एंड रिटर्न द एक्यूज, रिटर्न दैट पर्सन टू द कंसर्न्ड कंट्री, विच इज कॉल्ड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। नो, जैसे कि मैंने बात किया था कि शिप, एयरक्राफ्ट, ऐसे एयरक्राफ्ट का भी एग्जाम्पल है। एयरक्राफ्ट इन द सेंस दैट एक ऐसा एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट जो इंडियन रजिस्टर्ड है, वो इंडियन रजिस्टर्ड है बट वो इस समय वो कनाडा में है। उस इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के अंदर दो फॉरेनर्स की लड़ाई होती है, एक फॉरेनर किल कर देता है दूसरे फॉरेनर को, तो ये मान लिया जाएगा कि वो इंडियन टेरिटरी थी, क्योंकि वो एक फ्लोटिंग या एक मूवेबल इंडियन टेरिटरी थी, जिसपे एक फॉरेनर इंडियन टेरिटरी मतलब कि इंडिया में रह करके उसने ऑफेंस कमिट किया, BNS उस पर अप्लाई करेगा एंड ही विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड।
नो, another illustration that what if the foreigner, जो फॉरेनर का एक्ट है वो ऑफेंस नहीं है उसके खुद के कंट्री में बट इंडिया में ऑफेंस है, ऐसे केस में क्या हो? नो फॉरेनर कैन टेक दिस डिफेंड दैट अ पर्टिकुलर एक्ट इज नॉट ऑफेंस इन हिज ओन कंट्री। यस, फॉर एन एग्जाम्पल, एक फॉरेनर आता है इंडिया में कमिट करता है कि ऐसा ऑफेंस जो उसकी कंट्री में नहीं है बट इंडिया में है, या इंडिया मेन लैंड में कमिट करा या फिर किसी ऐसी टेरिटरी जो इंडियन टेरिटरीज है, वो फ्लोटिंग आइलैंड हुआ, फ्लोटिंग टेरिटरी मतलब कि शिप के फॉर्म में हुआ या एयरक्राफ्ट के फॉर्म में हुआ या 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर हुआ, वो फॉरेनर यहाँ पे कमिट कर रहा है एक ऑफेंस। ऑफेंस के बाद ही इज टेकिंग दिस डिफेंस दैट he is taking this defense by saying that that particular offense is not culpable in his own country। तो ये तो excusable नहीं है। We studied in the landmark case of M.H. George that if you have entered in India, you are supposed to know, to be conversant, to be acknowledged of each and every law of India. No. The third clause, C clause, offense committed by any person in place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India। For an example, ये it covers the case of conspiracy। जो मान लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी हो रही है अगेंस्ट इंडिया, तो कॉन्स्पिरेसी तो वहाँ पे हुआ, जो मेन एक्यूज है वो पाकिस्तान के नेटवर्क में बैठ के कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, और उस कॉन्स्पिरेसी का जो इफेक्ट है वो इंडिया में हो रहा है, या फिर इंडियन नेटवर्क या इंडियन का जो बेस सिस्टम है, इंडिया का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हैक कर रहा है बाहर बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के। तो नाउ लेट अस अप्लाई, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। द मेन एक्यूज इज इन फॉरेन कंट्री, उसका जो इफेक्ट है, उसके एक्ट का जो इफेक्ट है दैट इज इन इंडिया। तो आई टॉट यू अ प्रिंसिपल कि जब मैं क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ऑफेंडर की नेशनलिटी को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हियर कम्स द एक्सेप्शन। ओके, इट सेज दैट विक्टिम यहाँ पे इंडिया का कंप्यूटर सिस्टम है, एक्यूज बाहर का है, लेकिन फिर भी ही इज लायबल एज पर बीएनएस। दिस इज एन एक्सेप्शन, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल which says that criminal jurisdiction has to be decided by the offender's nationality। तो ये जनरल रूल है, बट इसका एक्सेप्शन ये क्लॉज सी है जिसमें ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर रिसोर्स है, कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया का इफेक्ट हो रहा है, उसको हैक किया जा रहा है बाहर बैठे हुए किसी पर्सन के द्वारा, तो वो पर्सन ऑफेंडर बाहर का है लेकिन उसको फिर भी बीएनएस विल प्रोसिक्यूट एंड पनिश। Now, let us read the explanation given of section 1. In this section, the word offense includes every act committed outside India, which, if committed in India, would be punishable under the Sanhita. Very much lucid. Illustration: A, who is a citizen of India, commits a murder in any place without and beyond India, means foreign country. He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found, means the reflection of section 208 of BNSS. Now, let us go to subsection 6. Basically, subsection 6 says that एक ऐसा, let us read, basically ये exception है, it is an exception to section 1 subsection 3, it is an exception to the general rule of intra-territorial jurisdiction। इंट्रा-टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या कहता था कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी पर्सन, इंडिया, इंडियन सिटीजन या फॉरेनर, एनी पर्सन हु कमिट्स एनी ऑफेंस इन इंडियन टेरिटरी विल बी लायबल एज पर दिस संहिता। लेकिन इसी का एक्सेप्शन है सेक्शन 6, सबसेक्शन 6। इट सेज दैट नथिंग इन दिस संहिता शैल इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन in the service of the government of India or the provisions of any special or local laws। Let us try to understand। It says that कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि वो सोल्जर है या सेलर है या एयरमैन है, जो कि सर्विस के दौरान वह म्यूटिनी कमिट करता है, दो ऑफेंस कमिट करता है, म्यूटिनी एंड डिजर्सन। डिजर्सन मीन्स वह सर्विस छोड़ के विदाउट परमिशन
जो कि हॉलीडे पे नहीं है, वो डिजर्ट करके घर आ जा रहा है भाग के। हो सकता है वहाँ बॉर्डर पे वॉर होने वाली हो, वो डर के घर आ गया, उसको बोलते हैं डिजर्सन। म्यूटनी एंड डिजर्सन of officers, soldiers, sailors, airmen in the service of the government of India or the provision of any special या local law। तो ऐसे पर्सन को जो डिजर्सन डिजर्टर है या ऐसे पर्सन को म्यूटनी कमिट किया है अगेंस्ट इंडिया, उसको हम बीएनएस से पनिश नहीं करेंगे। ऐसे पर्सन को जो सोल्जर है, ऑफिसर है, सेलर है, एयरमैन है, अगर ये चारों पांचों लोग ये अगर म्यूटनी और डिजर्ट कमिट कर रहे हैं तो इन पे बीएनएस अप्लाई नहीं करेगा। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि ये सारे इंडियन हैं, इंडिया के टेरिटरी पे कमिट कर रहे हैं ऑफेंस, ऑफेंस बीएनएस से कवर हो रहा है, फिर भी बीएनएस इनको प्रोसिक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनके सारे स्पेशल और लोकल लॉज, इनके सारे खुद के लॉज होते हैं, इनके सारे खुद के एक्ट होते हैं। एज आई टॉट यू इन बीएनएसएस, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, वो सारे एक्ट्स में इनके पनिशमेंट्स, इनके ऑफेंसेस ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हैं। अब जो एयरफोर्स एक्ट हुए, नेवी एक्ट हुए, these are the special acts, these are the special acts। what is a special act? If we go to section 2 clause 30, section 2 clause 30, let us read। section 2 clause 30 says special law means law applicable to a particular subject। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक ऐसा स्टैच्यूट जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील कर रहा हो। नेवी का एक्ट नेवी ऑफिसर से डील कर रहा है, ऐसे एयरफोर्स का सेपरेट एक्ट होता है। अगर ऐसी बात करें तो बीएस से भी एक स्पेशल एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज अगेन एंड द इट इज अ स्पेशल एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट स्पेशल एक्ट, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहा है। नो, तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट बीएनएस विल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली इफ दे आर कमिटिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन। लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा ऑफिसर, सोल्जर या एयरमैन मर्डर कमिट कर दे, रेप कमिट कर दे, तब बीएनएस अप्लाई करेगा। मर्डर और बीएनएस या ऐसे ऑफेंस जो ये दोनों नहीं है, म्यूटिनी और डिजर्शन का ऑफेंस नहीं है, तब बीएनएस अप्लाई करेगा। मार्क दिस पॉइंट, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। म्यूटिनी एंड डिजर्शन, इट इज़ अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, इट usually asks that for which those two offenses BNS will not apply to such officers। So it is mutiny and soldiers, or mutiny and desertion only। Apart from the offense of mutiny and desertion, they can be prosecuted and punished under this संहिता। Got it? No। लोकल लॉ क्या होता है? लोकल लॉ जैसे कि स्पेशल लॉ, एज आई टोल्ड यू, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, फॉर एन एग्जाम्पल देर इज अ मकोका। मकोका एक लोकल लॉ है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र दिस इज अ मकोका। मकोका इज अ लोकल लॉ फॉर महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम, इट इज महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम एक्ट। दिस पर्टिकुलर लोकल लॉ जो एक लोकेलिटी, एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में ही वो अप्लाई होता है, वो पैन इंडिया लेवल पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि मकोका अप्लाइज ओनली महाराष्ट्र रीजन। ऐसे जैसे कि यूपी के लिए यूपी कोका भी है। उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट। ओके, नो, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे स्पेशल लॉज या ऐसे लोकल लॉज के तहत अगर वो म्यूटिनी या डिजर्शन कमिट कर रहा है तो बीएनएस अप्लाई नहीं करेगा। ओके, नाउ let us go ahead now। We know that we have two kinds of laws। One is general law and one is special law or local law। Special law, we studied a special law is a law which talks about or deals with one subject matter, one aspect। Local law is a law which has its applicability in a specified region। एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक पर्टिकुलर इलाके के ऊपर ही वो अप्लाई करता है।
जनरल लॉ जैसे कि हमारा हो गया BNS, CPC, ओके। स्पेशल लॉ जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से डील करता है, जैसे इनकम टैक्स स्पेशल लॉ हो गया, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करता है, जैसे कि हमारा हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट, NDPS एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, JJ एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, TPA, दीज आर दी स्पेशल लॉ। लोकल लॉ जैसे मकोका हो गया, यूपी का हो गया, यूपी कोका, ऐसे और भी लॉज हैं जो एक्साइज एक्ट्स होते हैं, गुजरात एक्साइज एक्ट, तो वो गुजरात पे अप्लाई करते हैं। तो एक मैक्सिम यूज होता है विच इज़ called as generalia specialibus non derogant. It means that जो जनरल लॉ होता है that will not override the special law, that will not override the special law. What does this mean? कि जो जनरल लॉ में लिखा गया है, मान लेते हैं एक ऐसा ऑफेंस है जो स्पेशल लॉ और लोकल, स्पेशल लॉ और जनरल लॉ दोनों में कवर हो रहा है। एक ऐसा ऑफेंस जो BNS में भी ऑफेंस है, एक ऐसा एक वही ऑफेंस किसी स्पेशल लॉ में भी है, जैसे कि डाउरी स्पेशल लॉ है, डाउरी हुआ, पॉक्सो हुआ, ये सारे स्पेशल लॉज हैं। अब वो पर्टिकुलर ऑफेंस BNS में भी ऑफेंस है एंड दैट ऑफेंस इज इन डाउरी एक्ट ऑल्सो। Now, as per this maxim, we are guided by and we say that general law BNS will not apply, but that special law will apply on that particular offense. अगर एक offense BNS में भी है, वही offense special law में भी है, that special law will have effect. Special law will prevail over the general law. Means general law overrides the special law. So now this generalia specialibus non-derogant, it means that the general law BNS will not override any special law या फिर डाउरी एक्ट, BNS will not override डाउरी एक्ट या पॉक्सो एक्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑफेंस BNS में भी ऑफेंस है, वो स्पेशल लॉ में भी ऑफेंस है, तो BNS की जो एप्लीकेबिलिटी है वो स्टॉप हो जाएगी और उस ऑफेंस पे स्पेशल लॉ एग्जीक्यूट और अप्लाई होगा। वाई इज इट सो? द रीज़न इज दैट जब किसी सब्जेक्ट मैटर पे एक अलग इंडिपेंडेंट स्टैच्यूट है, इट मीन्स दैट वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे पूरा स्टैच्यूट बहुत ही एनालाइज करके, बहुत ही डीप में जा करके उसकी प्रोसीजर और सब्सटेंटिव की बातें की गई हैं। जो BNS है दैट इज जनरल लॉ, किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डेप्थ में बात नहीं की गई है, डीप में बात नहीं की गई है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी इन स्पेशल लॉ के केस में किसी भी ऑफेंस या किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बहुत डेप्थ में बातें हुई है और बहुत ही एनालिसिस करके लिखी गई है, प्रोसीजर की बातें की गई है और सब्सटेंटिव ऑफेंस भी लेड डाउन है। तो ऐसे केस में इट इज़ द आस्क ऑफ प्रूडेंस टू गो बाय स्पेशल लॉ। नाउ suppose there is an offense which is covered in 2 laws. तो जब कोई एक ऐसा ऑफेंस जो 2 लॉ में कवर है, तो वो 2 क्या उस ऑफेंस के लिए उस ऑफेंडर को वी विल पनिश इन दोज 2 लॉज ऑल्सो? नो, बेसिकली इट सेज दैट इफ वी गो टू जनरल क्लॉजेस एक्ट, section 26 of general clauses act says that if an offense is covered in 2 separate laws, then we have to take only one law and that one law only will prosecute and punish the law. अगर हम दोनों लॉ को लेकर के चलते हैं एंड उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे डबल jeopardy will be attracted and will protect the offender. So as per General Clauses Act, section 26, it says that if an offense is covered in 2 separate laws, it can be any 2 separate laws, it can be one general law, special law, तो या तो हम उस पर्टिकुलर ऑफेंस को जनरल लॉ से ट्रीट करें, प्रोसिक्यूट करें, या फिर स्पेशल लॉ से करें। नो, अब यहाँ पे स्पेशल लॉ से करेंगे या जनरल लॉ से करेंगे? अगर एक ऐसा ऑफेंस जो जनरल लॉ स्पेशल लॉ में कवर हो रहा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ये कहता है कि स्पेशल लॉ विल ओवरराइड स्पेशल लॉ
I think this is wrong statement I have written. General law does not override. General law does not override. General law does not override the special law. The reason I have explained. Special law has been designed, has been described in a more basically काफ़ी analysis. It is because special law on any topic is enacted with very depth and high analysis. So it contains umpteen number of sections. It describes a single punishment, a single provision, और उस सिंगल प्रोविजन और सिंगल पनिशमेंट की जो प्रोसीजर हैं वो काफ़ी डेप्थ में है. इसीलिए अगर उस पर्टिकुलर ऑफेंस पे स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ विल ओवरराइड द जनरल लॉ. So I think this much is enough for today. Now the next lecture will be on the topic of BNSS. So basically this much is enough for today. You complete till here. I'll be meeting you. I'll be meeting you with our fourth lecture on BNSS.